ओम शांति शांति सिस्टर। सिस्टर जयंती जयंती। दीदी। ओम ओम शांति सभी शांति को। अरुणा everyone. बहन आपको भी। Everybody else. ओम शांति सभी को। Om Shanti to everyone. और मैं कुछ And I would क्षण like देना this चाहूंगी evening to talk बात करने about की कि इस our वीकेंड को क्या weekend. आने होने वाला है। So this coming इस weekend वीकेंड at the को Global Retreat Center, जीआरसी we have ग्लोबल a रिट्रीट grand सेंटर में grand बहुत भव्य opening. वहाँ का उद्घाटन होगा And और there's बहुत been कुछ so सहयोग much मिल रहा है सभी cooperation from तरफ से, everyone. यूके के We are आसपास के around the विदेशों से। UK, और and मैं I'll आपके share a साथ few कुछ साझा statistics करना with you. चाहूंगी। हमारे साथ We also ब्रिजमोहन have भाई जी भी हैं, Brijmon लंदन Bhai में in वेदांती London, बहन भी also हैं। Vedanti Ben in और London, and हम we are जीआरसी listening उनको obviously through वेबकास्ट के द्वारा उनके webcast क्लासेस classes. सुन रहे हैं। तो And I बस ये just want to बताना say चाहूंगी कि how कैसे every सारा दिन day there's like a एक flow, फरिश्तों there's की जैसे angels, आना जाना लगा हुआ angels है, just coming in, थोड़े बहुत coming सेवा out, करने। doing a little seva, और बहुत going off अच्छा again, लगता and it है। really feels like the ऐसा लगता है sacred. कि जैसे हम We feel like हम we meet in the जब evening, चाय और टोली का we do a समय little होता है तब exchange, drishti, a little दृष्टि time, देते हैं, and आपस में then मिलते हैं everyone और goes फिर back to अपने their सेवा स्थानों पर सभी वापस चले जाते separate हैं। place. तो मैं कहना चाहूंगी So I want to कि say that मुझे पता नहीं, I जयंती don't know बहन if you आपको know, मालूम Sister है कि Jenny, हमने we made 10,000 10,000 biscuits. बिस्किट बनाए हैं Actually, not we, it's यूके a के सहयोग cooperation के from the साथ। UK. और And several, I 50 think 60 60 kilos किलो of chickpea जो flour, बेसन का है very उससे good savory नमकीन items, टोली भी मिली है। lots of तो सभी sisters ने that are helping. So मदद it's की not है, just न सिर्फ ऑक्सफोर्ड में Oxford, it's also परंतु लंदन London ने भी has बहुत taken on a huge इसमें role. सेवा में योगदान दिया है। We have हमारे about हमारे पास 600-700 cars 600-700 coming, कार आने वाले हैं, 8 about 8 बड़े coaches गाड़ियां आने coming, वाली हैं। और and right now बाहर outside यहाँ here, पर the big एक marquee is बहुत being set बड़ा up, and भव्य एक flags जगह will be बनाएंगे जहाँ raised पर and साइन पोस्ट signposts. होंगे The parking और has been mapped फ्लैग्स out. लगाएंगे। There's so much going on. We पीछे still have a नई few किचन things बनाई left है in the कोर्टयार्ड में, foyer. अब 3 So there's किचन 3 हो गई हैं kitchens यहाँ now to यहाँ पे। open, और सभी and बहुत everything अच्छे से प्लानिंग is चल रही really है। well planned. And तो actually, मैं I want to जयंती बहन say, को Sister बताना Jenny, that चाहूंगी it's कि such बहुत ही अच्छा एक how to say, it's like a हारमनी है choreography of टीम्स की teams just working आपस together. It में actually is a joy सेवा के to do this क्षेत्र seva में। this time. तो I mean, इतना sometimes सहयोग when मिल we रहा do है। operations, it's not, बहुत but सुंदर it एक seems really seamless बहुत ही and सहज so और smooth that it's स्वाभाविक flowing. रीति से ये सब चल रहा है। और मेरा ये And wish that शुभाश all है seva ये is सारी flawless. सेवाएं ऐसे हो And I जाए, think the main reason is क्योंकि that सभी दिल से everyone's काम कर working रहे हैं from और their अपना heart पूरा पूरा दे रहे and हैं। giving और their मैं best. And बहुत I'm certainly आभार very प्रकट appreciative कर of रही that. हूँ। So बहुत there's a lot of हारमनी है, beautiful, एकता beautiful से सभी living. करें। And I'm और sure दादी Sister जान Jenny's की looking नीचे down देख on रहे us and होंगे being और so बहुत proud of ही us. अ, हमारे ऊपर बहुत So ही yeah. उनको And नाज Sister होगा। Jenny was with us जयंती this बहन हमारे morning. साथ So हैं, तो जयंती over से to you, Sister सुनेंगे। Jenny. ओम शांति। Om Shanti. जो आपने Thank you, Sister पूरा Jenny. लेखा जोखा Just भेजा, amazing. Over 1,600 से 1,600 ज्यादा ब्राह्मण्स registered, आने वाले हैं रजिस्ट्रेशन के and अनुसार। rooms are full. और Over 500 होटल में भी रूम hotels, कमरे लिए and गए I हैं। think over और 1,000 के 1,000 करीब registered पब्लिक for आने public, वाली है। but we're expecting that तो to वो और concentrate भी, in the next few अभी वो days. 1,700 हो About गए हैं 1700. पब्लिक। Brahmins. No, public तो day. अभी वो Public day, और great. बढ़ेगी संख्या। और Yeah, हर every रोज day नई नई we संख्या आ रही increase the है। figures. तो बहुत It's just शक्तिशाली वो great. वातावरण, बाबा Energy से is वो flowing from us, वाइब्रेशन आ रहा है जो flowing सभी तक energy पहुंच रहा है। everybody और बहुत else. सुंदर है ये। So it's really lovely. And the marquee is going to be big, as और you can इतना imagine. बड़ा वो क्षेत्र जो बनाया है बाहर, वो बहुत बड़ा होने वाला है। Special. और कल की मुरली पे अगर Yes, बात today's करें Murli. Let's go back to that. तो हम Yesterday we had 95 के 95. शुरुआत की मुरली, और बहुत Very मुरलियां बहुत inspiring, गहरी, बहुत very शक्तिशाली। intense and powerful. और एक संदेश And जो the message that's कुछ मुरलियों से आ रहा है, most वो new Murlis is it's बाबा not कह रहे हैं enough just to कि have इस knowledge. पूरा नहीं है It's कि not सिर्फ enough even to have शक्तिशाली हो जाए या प्रेम स्वरूप the हो जाए, combination परंतु of knowledge and power. ज्ञान And you और need the शक्तिशाली combination दोनों of होना है। knowledge and power. और बाबा So इस पर Baba's जोर डाल रहे talking हैं, इस बैलेंस का। this balance of the two और things together. ये कोई So विपरीत नहीं है, not परंतु ये opposites, साथ but में काम they करते work हैं। together in और अगर conjunction. एक भी इनमें से कमी है And if किसी one की of them तो is missing, काम things can't होता नहीं work है। out. But love and तो power is ज्ञान also knowledge
स्नेह और शक्ति और ज्ञान और शक्ति। और बाबा ने कहा बहुत अधिकारी, जो हमें अधिकार है, वो अधिकार है हमें धर्म पर भी, धर्म सत्ता, धार्मिक सत्ता, जिस रीति से हम अपना जीवन जीते हैं, जीवन शैली कहें अलग अलग रूप से। और बाबा ने कहा है धर्म सत्ता। कई बार हमें ऐसा लगता है, तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि जो सत्यता का पाठ है वो बहुत ही सीधा है, और बाबा ने धर्म धारणा के लिए भी इस्तेमाल किया है। और बाबा ने कहा कि आपके पास अधिकार है राज्य करने का भी, तो राज्य सत्ता भी है। तो एक तरफ है हमारे पास लाइट का ताज, वो सत्यता और पवित्रता के आधार से मिलता है। साथ ही साथ एक रतन जड़ित ताज है जो हमारे राज्य अधिकारी बनने के आधार पर मिलता है। जितने जितने हम अभी संगम पर स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाबा ने कहा ये जो सारी शक्ति है धर्म की, बाबा ने 2 शब्दों में कही, सत्यता और पवित्रता। और सच में वो यही है। और बहुत ही मेरे लिए जो सुंदर रहा कि कभी कभी हम बात करते हैं धर्म माना अहिंसक या स्नेह, वो भी ठीक है, परंतु अगर हम सोचें, और बाबा ने कहा क्योंकि द्वापर से दोनों सत्ताएं अलग हो जाती हैं, तो धर्म पिताएं आकर के दोबारा से वो सत्यता का, पवित्रता का मार्ग दिखाते हैं। तो जैसे जैसे समय बीतता है तो वो धीरे धीरे पवित्रता कम ही हो जाती है। और अभी तो हम देख रहे हैं पूरा झाड़ ही जैसे जर्जरीभूत हो गया है। तो सत्यता और पवित्रता की बात करें तो हाँ, सत्यता है, और लेकिन साथ में झूठ भी है ना। अब दोनों है इस समय, क्योंकि हम अभी सत्यता के दौर में नहीं चल रहे हैं, और हम अभी सत्यता के युग को पार कर चुके हैं। और साथ ही साथ दिखावा, ऊपरी सब कुछ, कुछ भी रियल नहीं है सब कुछ। तो अभी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो हम उसके आधार पर कुछ भी बना लेते हैं, किसको क्या पता। तो ये तो एक उसी असुर की तरह है जो बटन दबाने वाला है विनाश का। तो हम देखेंगे कि हाँ, ये कल्याणकारी है, परंतु विश्व के लिए जो बना रहे हैं, इसकी स्थापना कर रहे हैं, वो जब देखेंगे कि ये जो असुर उन्होंने खड़ा किया है, तो ये ऐसा युग है जब सब कुछ बाह्य रूप से है, दिखावा मात्र है, जो हम हमारे आसपास जो भी जो उस पर लागू होता है। तो सत्यता वो है सतयुग का युग, जब हम स्वरूप बन जाते हैं सत्य के, और उसका अधिकार होना सत्यता का और पवित्रता का। और मैंने कई बार देखा है कि जो गुण है पवित्रता का, वो पूरे ही साइकिल में हमें राज्य दिलाता है। परंतु बाबा ने दोनों की बात की, पवित्रता और सत्यता, जो पूरे साइकिल में राज्य दिलाता है। तो जो शुरुआत का है वो 100% पवित्रता और सत्यता का युग था, और धीरे धीरे कैसे नीचे आया, और फिर द्वापर से कैसे नीचे आया, और आधी सत्यता चली गई, पवित्रता चली गई। और क्योंकि हम अपनी ही सत्यता, अपने अविनाशी निराकारी स्वरूप से दूर हो गए, अपने को इस प्रकृति के तत्वों को समझने लग गए, और फिर हम अपने से दूर हो गए, अपने सत्यता से, और फिर दूर 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 वो बढ़ता रहा।
और जैसे बाबा ने और भी कहा स्वराज्य के बारे में, मुझे याद है जब कॉलोनियलिज्म खत्म होने वाला था तो उन्होंने बोला कि ये तो आज़ादी की समाप्ति है, परंतु वो जरूरी कदम था। और वो जो वो जो एक स्वराज्य था अपने कर्म इंद्रियों पर या फिर अपने अंदर मन बुद्धि संस्कार, और साथ ही साथ जो हमारी मानसिक आपदाएं हैं, उसने अब आज के दौर में एक बहुत ही महामारी का रूप ले लिया है। तो अभी हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं तो जहाँ स्वराज्य तो है नहीं किसी भी कोने में विश्व के, क्योंकि हमारी कर्मेंद्रियां हमारे ऊपर राज्य कर रही हैं या फिर हमारा मन हमारे ऊपर राज्य कर रहा है। बुद्धि का तो कुछ कहना ही नहीं है, वो बुद्धि तो कुछ बोल ही नहीं रहा, कभी कभी वो हमसे बात करता है, परंतु जो हमारी भावनाएं हैं उनकी शक्तियां हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं और हम उसी दिशा में चले जाते हैं। और बहुत सुंदर कलयुग के अंत में हो रहा है, जैसे कहते हैं कि अपने मन को मन की सुनो, तो इसका मतलब है कि अपनी भावनाओं की सुनो। तो हमारी भावनाएं तो कभी स्थिर होती ही नहीं है, वो तो सच भी नहीं है। कभी कभी भावनाएं जो हमारे हम जिससे गुजरते हैं वो कोई दुरुस्त भी नहीं होते हैं। और कलयुग के अंत में हम दूर चले गए हैं उन चीजों से जो सत्य थी, और उनको समझ पाना और वो शक्ति होना ताकि हम उसको अपने जीवन में उतार सकें, वो सब बाबा हमें देते हैं। और बाबा हमें जब सत्यता देते हैं तो आसान नहीं होता उसको स्वीकार करना। जैसे कि हम दवाई लेते हैं, क्योंकि दवाइयाँ कुछ कड़वी भी हो सकती हैं, तो सत्य जो बाबा से हमें प्राप्त होता है वो कभी कभी बहुत कड़वा भी हो सकता है। तो इस घड़ी में ये मुझे मौका है हर चीज को पूरे साइकिल के लिए, पूरे कल्प के लिए देख पाना, अपने को समझना। बाबा के ज्ञान द्वारा हमारी बुद्धि साफ होती है और अंदर की सच्चाई सफाई से परमात्मा से संबंध जुटाकर उनसे शक्ति लेना। तो पहला जो हिस्सा था मुरली का बहुत सुंदर था और बहुत विस्तार से बाबा ने बताया। और फिर आगे में बाबा ने कहा लेना और देना। और हम कहते हैं कि लेना आसान होता है, और जो बाबा हमें देता है उनको लेना भी कई बारी, बाबा तो सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन लेना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है, संघर्ष हो जाता है, क्योंकि हम अपनी सही चेतना में नहीं होते हैं, सही स्मृति में नहीं होते हैं। बाबा हमारे अंदर कितनी शक्ति है, कितना साहस है देने में, और ये भी समझ होनी चाहिए कि क्या देना है। तो हमें समझना है कि अपने तन का भी क्या मूल रह गया है, अपने धन का भी क्या, या अपने मन का भी क्या मूल रह गया है। तो ब्रिटेन में और बहुत सारे देशों में जो पैसे का, धन का जो मूल्य है वो बिल्कुल नीचे 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 उतर रहा है समय अनुसार। तो हमारे पास इनका क्या मोल है? तो हमें क्या करना है, हमें समझना है इसको कि ये कुछ नहीं है जो मैं परमात्मा को दे रही हूँ, परंतु हम सारा बाबा से ले रहे हैं। और वो एक स्मृति होनी चाहिए जिससे हम बाबा से ले सकें जो वो हमें दे रहे हैं। तो लेना और देना, ये सारी एक्सरसाइज प्रतिक्रिया ये बहुत सुंदर थी। और ब्रिश्मन भाई जी का इंटरव्यू हुआ जिस दिन उन्होंने वो पहुंचे, और उन्होंने कुछ ही समय था उनके आने के बाद और इस इंटरव्यू के बीच में। तो इंटरव्यू लेने वाली मुझसे बाद में बोलती है कि बहुत ही सुंदर चीज, जैसे उनको जो उनको दिल को छू गई जब उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि जीवन आखिर है क्या, और उनका उत्तर था वो जीवन है देने के लिए, कि हम कितना देते हैं और क्या हम दे पाते हैं, क्योंकि कुछ भी
दुनिया में कुछ ऐसा लेने के लिए नहीं है, वो सिर्फ देने के लिए है। तो ये बहुत सुंदर जवाब था उनसे, जो इस चीज का अभ्यास 70 वर्षों से अधिक से कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं। तो हमारे पास दादियां थी जिन्होंने इस स्तर का अभ्यास किया था, और ब्रिजमोहन भाई जी भी हैं, तो वो भी उस पंक्ति में आखिरी हैं। तो बहुत भाग्य है हमारा उनको यहाँ पर पाकर। तो लेना और देना। और बाबा ने कहा सौगात क्या देंगे शिवरात्रि के समय। शिवरात्रि का समय था, और अगर बाबा ने कहा किसी का जन्मदिन होता है तो आप सौगात देते हैं प्यार का। तो आप क्या दे सकते हैं शिव बाबा को। और उनके लिए, खुद के लिए नहीं, परंतु बाबा ने कहा हमें वो सौगात है कह पाना कि हम अपने को अपसेट नहीं होने देंगे किसी भी परिस्थिति से। और बाबा ने बहुत सुंदर मिसाल दिया, जैसे एक झूला होता है और आप झूले में बैठे होते हैं, तो शरीर ऊपर नीचे होता है, आप समझ सकते हैं। तो आपके अंदर का गतिविधियों को आप समझ सकते हो, परंतु फिर भी आप उसे खेल समझते हो और आपका मन खुश होता है और बहुत स्थिर होते हैं आप। तो जब सभी परिस्थितियां आसपास की ऊपर नीचे होंगी, परंतु अंदर से हम स्थिर होते हैं, सेट होते हैं, और बाहर के जो बदलाव हैं वो हमारे ऊपर हमारे अंदर हलचल नहीं पैदा करते हैं। तो वो ऐसी स्थिति है कि सच में जब हम संगम को का आनंद ले रहे हैं, मौज ले रहे हैं, अपसेट नहीं हो रहे हैं, परंतु एक मुस्कुराहट के साथ इस बेहद के खेल को, इस बेहद के ड्रामा को हम समझकर चल रहे हैं। और बाबा ने कहा नॉट और डॉट, और बाबा ने कहा वाई और फ्लाई, क्योंकि ये सब बातें हैं जो हमें स्थिर रहने में मदद करती हैं और अपसेट नहीं होने देती हैं। क्योंकि ये सारे समय व्यर्थ संकल्प जो हमारे अंदर चलते हैं, जो हमें दिखाती हैं उन चीजों को जो हम समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये अलग दिशा में है, मेरे जो मैं चाहती हूँ उससे विपरीत है, तो ये सब चीजें अंदर चलती रहती हैं। तो बाबा ने कहा नहीं, क्यों आपको ये सब ऐसा सोचना है। आपको पता है ये सब व्यर्थ हो रहा है, आपका समय, आपका ऊर्जा। तो क्या कहना है, नहीं, और एक बिंदु लगाना है। और कभी कभी आपको समझ होगा कि हाँ, आपको ज्ञान चाहिए, परंतु साथ में शक्ति भी चाहिए होती है कि जो भी हम समझ रहे हैं, जो हमें करना है, वो हम करेंगे, लेकिन जो हमारी क्षमता से बाहर है वो हम नहीं कर सकते हैं। तो हमें बिंदु लगाना आना चाहिए। तो बाबा ने युक्ति बताई। तो अपनी तरफ कोई भी, हम जब प्रश्न पूछते हैं क्यों मैं, तो बाबा ने कहा ये क्यों क्या की बजाय उड़ जाएं, ऊपर से उड़ जाएं, और ड्रामा को नीचे से, ऊपर से नीचे की ओर देखें। तो सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ रहें और फिर नीचे देखेंगे, तो आप देखेंगे कि आप खेल चल रहा है, तो आप ड्रामा को ऐसे देखेंगे कि कैसे ड्रामा सुंदर रीति से चल रहा है। और बाबा ने कहा उड़ जाओ। और उड़ना, जैसे कोई टाली टूटती है, तो ये नहीं कहते क्यों क्या, और हम बस उड़ जाते हैं। तो बाबा ने बहुत बहुत अलग नजरिए से बताया। और फिर रॉयल रूप से जो देहभान आता है, और हम सभी उसके अनुभवी हैं। मेरी राय ठीक है कि कैसे बाकी लोग उसको नहीं स्वीकार कर रहे हैं, उनको स्वीकार करना चाहिए क्योंकि वो ठीक है। वो स्वीकार नहीं कर रहे मुझसे, और उस बात से हम उनको गलत समझ के अपसेट हो जाते हैं और हम गुस्सा हो सकते हैं। और बाबा ने कहा ठीक है, आपने अपनी राय दी, वो अच्छा है। अब पीछे एक कदम करके, और जब दूसरे अपनी राय देते हैं, तो हम क्या करते हैं,
क्या हमारा दिल इतना बड़ा है कि हम उनकी राय को स्वीकार करें और कहें हाँ ठीक है, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उस घड़ी में हम कहते हैं मेरा विचार ठीक है, और हम वो सम्मान वो मान नहीं दे पाते हैं, दूसरों के प्रति वो रिगार्ड नहीं रख पाते हैं। और बाबा ने कहा जो परिवर्तन हमें अपने अंदर में लाना है, कि क्या हमारे अंदर वो स्वमान है जिससे हम विचार दें और साक्षी हो जाएं, फिर जो कुछ भी होगा वो ठीक होगा ड्रामानुसार। और ब्रिजमोहन भाई जी ने फिर से बताया कि भले वो गलत भी हो, परंतु वो ड्रामा में वो भी ठीक है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो गलत है, ड्रामा सीधा ही चल रहा है, धीरे धीरे वो इधर उधर नहीं जाएगा। तो हमें बस सीधा सीधा चलना है ड्रामा की पटरी पर। और विचार जो दूसरे देते हैं, हमारे अंदर उतना स्वमान होना चाहिए कि हम दूसरे के भी उनके विचार को स्वीकार करें। यानी हमारे अंदर वो क्षमता होनी चाहिए एडजस्ट करने की, कि हमारे अंदर वो शक्ति है एडजस्ट करने की। अगर हमारे अंदर वो शक्ति है अपने को ढालने के लिए, अपने को हम मुस्कुरा के चल सकते हैं, एक फूल की तरह चल सकते हैं जैसे बाबा चाहते हैं। नहीं तो क्या होता है कि हमारा मूड बदलता है और हमारे चेहरे पर भी वो आता है। तो बाबा ने बहुत बहुत एक बड़ा पाठ समझाया कि वो समझ के हमारे अंदर क्या चलती है, कि हम उस अधिकार को पकड़ के रखें कि क्या ठीक है, उस धर्म को जो स्वाभाविक स्थिति है आत्मा की, वो सत्यता की और पवित्रता की, और साथ साथ वो स्थिति जिसमें हमारा पूरा राज्य है अपने ऊपर। तो मैं अपना राज्य हूँ, अपने संकल्पों का, भावनाओं का, अपनी स्मृति, अपनी समझ, अपने विचार, और सबसे जरूरी अपना राज्य अधिकारी होना अपने संस्कारों पर, खासकर कलयुगी संस्कारों पर ना, बल्कि वो नहीं हमारे जो अविनाशी संस्कार हैं, परंतु वो जो सत्य के हमारे अविनाशी सत्य संस्कार हैं। तो बाबा ने कहा धर्म सत्ता और राज्य सत्ता के बारे में कहा, और बाबा ने कहा ले लीजिए वो अधिकार और नंबर 1 बनेंगे। बाकी समय में कोई भी नहीं कहेगा कि आप सब कुछ ले लो, आप सब कुछ लो जो मेरे पास है। और बाबा भगवान परम सत्ता कह रहे हैं कि सब कुछ ले लो। तो ये जल्दी से सार रूप से पूरी मुरली को रखा। तो वो पूरी स्मृति की क्या परमात्मा ने वो पूरी 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 समझ दी है सत्यता की, पर न सिर्फ समझ बल्कि जानना कि क्या सत्य है। और बाबा ने वो हम सबसे साझा की, और हमारा कितना ऊंच भाग्य है कि हम वो सब कुछ ले पाए और अपने आप को भरपूर किया। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद जयंती बहन। तो हम लेना और देना इस पॉइंट पर हम बात कर सकते हैं कि हम सभी को पता है कि हम उठते हैं और हमारे अंदर बहुत अच्छा संकल्प होता है कि हम देंगे कुछ ना कुछ, अपना समय, अपना धन सेवा में, परंतु लंच के समय तक वो 50% रह जाता है और शाम तक वो और 75% कम हो जाता है। तो प्रश्न है कि एक है कि हमें वो संकल्प को पकड़ के चलना है, शक्तिशाली संकल्प को, उसको हम बोएंगे तो वो उगेगा। परंतु अगर हम तुरंत उस पर कर्म नहीं कर पाते हैं उस संकल्प पर, और लेकिन हमारी भावना बहुत श्रेष्ठ है, तो कैसे उस संकल्प शक्तिशाली जो है उसको रख सकें ताकि वो धीरे धीरे ढीला ना हो जाए।
तो अगर हम तुरंत कर्म करें अपने संकल्प के हिसाब से, वो तो बहुत अच्छा है। तो जैसे ही हम तुरंत कर्म करते हैं, उसका नतीजा भी मिलता है, परिणाम भी अच्छा होता है। मिसाल के रूप से हम कई बार धन तुरंत नहीं देते हैं बाबा को, अगर है ही नहीं तो अलग बात है। अगर हमारे पास है, कि अगर हम कहते हैं 10%, 20 या 50%, हमारी परिस्थिति के हिसाब से अगर हम तुरंत करते हैं, वो हमारे ऊपर है। तो हम अगर नहीं करते तो कई कारण देते हैं कि हमें ये देखना पड़ेगा, हमारे बिल कितने हैं। परंतु अगर संकल्प है देने का, तो अभी से ही उसको समझकर अभी से वो करें। तो जैसे हम समय देते हैं किसी को, अगर आज हम नहीं भी दे पा रहे हैं तो हम कल के लिए करें, कल दें, परंतु अपने कैलेंडर में वो रखें कि वो, ताकि एक पक्का हो जाए। तो बस हम अपने को अगर, तो उसको ये समझना कि बहुत जरूरी है समय देना, तो हम कितना जल्दी से जल्दी उसको कर पाते हैं। आज नहीं तो उसको हम कहीं ना कहीं एक निर्धारित करें समय, भले आज नहीं, अगले दिन या उससे अगले दिन, जो भी है, परंतु वो फिर भी दिल को सुकून देगा। और जैसे हम समझते हैं कि हमें कुछ बनाना है परिवार के लिए भोजन, तो वो भी हमें देखना है कि हमें कहीं ना कहीं उसको लिखना होगा, नोट करना होगा, ताकि हम उसको उस पे फिर से जा सकें जितना जल्दी हो सके। और अगर हमारे अंदर भावना है सच में करने को, तो वो छोटे छोटे कदम हम लेंगे अभी, ताकि हम उसको एक नतीजे तक पहुंचा सके। न सिर्फ अपने मन तक एक संकल्प उसको पकड़ के रखें, परंतु उसको कर्मों में लेकर के आए। भले आज नहीं तो नहीं, कल परसों अपनी डायरी में लिख करके रखें। तो जैसे ग्लोबल कोऑपरेशन के दिनों में आप भी जिन हिस्सा थे, और आपको याद होगा हम लोगों को कहते थे कि एक ऐसा दृष्टिकोण बनाए कि एक बहुत सुंदर विश्व का, और जब दिन आने वाले थे कि क्या कदम आप ले सकते हैं आज, जिनको आप साकार में लेकर के आएंगे। और ग्रीस में हमने एक ये किया था कि एक कमरा हम अपने घर में बनाएंगे जहां पर हम कोई कोई शिकायत नहीं करेंगे, एक कमरा जहां पर कोई शिकायत नहीं होगी। और उन्होंने बहुत लंबे समय तक ये किया भी था। और जो ब्राजील में भाई थे, और वो जो भाइयों का समूह था, उन्होंने कहा था कि उन्होंने सारा ही अपना यात्रा का हालचाल साझा करते थे और भाइयों से। हमारे पास अगर बहुत सुंदर कोई विचार है, तो हम क्या आज कर सकते हैं ताकि हम उसको साकार में उतरने के, उसके और करीब पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद जयंती बहन। क्या आप बताना चाहेंगे कि वो समय जब बाबा ने कहा कि वो धन भी स्वीकार नहीं करेंगे, तो वो क्या समय था? कभी कभी बाबा कहते थे किसी को शुरू शुरू के दिनों में कि वो अपने जेवर लेकर के आती थी, तो वो जेवर उनके माता पिता से उनको मिलता था। तो उनको लगता था कि जैसे उनको एक वर्षे के रूप से उनके माता पिता से मिला है या दहेज के रूप से मिला है, परंतु साथ में वो वर्षा उस महिला को मिलता था उनके लिए, और ताकि वो आड़े समय पर उसको इस्तेमाल कर सकें। और कभी कभी बाबा कहते थे कि रखो इसको अपने पास। और ड्रामा अनुसार वो उनको कोई ना कोई ले गया, और वो जेवर भी चले गए। और कभी कभी बाबा कहते थे ठीक है, मम्मा को दे दो, और उनको वो बेच देंगे। तो बाबा के पास कुछ जौहरी भी थे जो बीके थे, तो बाबा और उनको बाहर ही उनको दे देते थे। वो एक
केस था। एक दूसरी परिस्थिति थी जब कभी कभी हाल ही के समय में जब दादी कहती थी कि रख लो और जब बाबा को जरूरत होगी तो आपको बता देंगे। तो ये बहुत बार हुआ। और अगर वो आता था भंडारे में तब तो हम इस्तेमाल करते थे उनको। अ, परंतु बहुत बड़ा कोई बिल्डिंग बनाना है या बहुत ही बड़ा कोई मरम्मत करनी है बाबा के घर के लिए, तो बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट है किसी भी कोने में विश्व के, तो जहाँ पर सहयोग चाहिए, तो दादी कहती थी कि आप भेज दीजिए वहाँ के लिए, ताकि वो न सिर्फ हर रोजमर्रा के खर्चों में इस्तेमाल हो परंतु एक विशेष कार्य में इस्तेमाल हो। तो दादी कई बार कहती थी नहीं, इसको रखो और जब जरूरत होगी तो हम बताएंगे। और ऐसा बहुत बार होता था। और बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते रहते थे मधुबन में। ओम शांति भवन के निर्माण के समय से दादी प्रकाश मणि जी कहते थे कि 50% विदेशों से आया है और 50% देश से आया है। तो अगर आप देखें कितने सारे सेंटर्स और ब्राह्मण हैं भारतवर्ष में और उसकी तुलना में बाहर कितने हैं, तो कितने कम है बाहर, तो ये जो 50% का सहयोग रहा कितना बड़ा रहा। तो जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता था तो दादी को कॉल आता था और दादी जान के हमेशा जी बोलते थे। तो बाबा को दादी को याद रहता था कि इसने मुझे कहा है, इन इनने मुझे कहा है सहयोग के लिए। तो दादी को याद रहता था कि इसको कहाँ पे सफल करना है, उसको कहाँ सफल करना है। तो वो आज भी चल रहा है। धन्यवाद। और इस प्रश्न जो डॉट के बारे में बाबा ने कहा, तो वो समय जिस समय हमें बिंदी लगानी है, तो उस समय मन बहुत ही व्यर्थ में चल रहा होता है। तो आप कुछ प्रैक्टिकल में कुछ ना कुछ कदम बताएंगे ताकि हम वो बिंदु जो है डॉट लगा सकें। बाबा ने मुरली में बहुत जोर डाला कि व्यर्थ को हटाओ, बिंदु लगाओ। बाबा ने हमें कहा कि बहुत इसके ऊपर ध्यान देना है और पुरुषार्थ करना है। तो कुछ प्रैक्टिकल अनुभव या कुछ युक्ति आप अपने पुरुषार्थ के हिसाब से बताएंगे। इसको इसको टाइम लगा है, समय लगा है, इतना जल्दी नहीं हुआ, परंतु आप समझ आपकी बढ़ती है और शक्ति बढ़ती है। तो ये दोनों चीजें चाहिए होती हैं। तो जब आप समझते हो कि इसके बारे में और सोचना मेरा समय और ऊर्जा बर्बाद करना है, तो वो हो रहा है। और हम उससे थोड़ा सा दूर होकर के जरा अपने से प्रश्न पूछें कि क्या किस रीति से हम इस बात में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हम उसको कर्म में लाएं। अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो हमारे अंदर वो शक्ति होनी चाहिए बोलने की कि अभी रोको, बिंदु। और अगर सही समय पर बाद में कोई और दरवाजा खुलता है तो हम देख सकते हैं कि क्या मुमकिन है, परंतु अभी कुछ भी ज्यादा नहीं है कि हम कोई कर सके उसके बारे में। तो एक बिंदु लगाएं और आपको वो शक्ति अपने अंदर धारण करनी है और वो शक्ति बाबा से मिलती है हमें। तो अपने अंदर वो शक्ति को भरना है और जिससे हमें मदद होगी उस बिंदु को लगाने में। जी, इसमें अभ्यास चाहिए। जयंती बहन, कल की मुरली पे जाऊंगी मैं, और ये चैट में आया है, यहाँ पर भी है और एक और जगह भी है। तो जब बाबा ने कहा कि आप ये अविनाशी खजाना उनको ना दे जो जो उसको व्यर्थ करे, गवा दे, तो दान भी पात्र को देखकर करना है। तो अगर क्योंकि वो उस दान से कुछ बुरा कर्म करता है तो आपका भी
कर्म में वो आप भागीदार बनते हैं उस कर्म में। तो बाबा सिर्फ धन के बारे में बात कर रहे हैं या फिर ज्ञान धन के बारे में बात कर रहे हैं? तो अगर हम ज्ञान दे रहे हैं किसी को, तो मैं नहीं समझती कि वो उसका इस्तेमाल करेगा किसी गलत रीति से। तो वो जो बाबा कह रहे थे कि अगर वो कुछ गलत कर्म करते हैं, पाप का कर्म करते हैं उस धन से, या जो भी हमने उसको स्थूल रूप से सहयोग दिया अपने बेट पुत्र को या अपनी पुत्री को, तो क्या वो है उसको सच में देने का कोई फायदा? तो वो ज्यादा अलौकिक रीति से है। परंतु अगर हम अलौकिक रीति से देखें, अपना समय और ऊर्जा वो बहुत जरूरी है बाबा के नजरिए से। तो हम उनको ज्ञान दे रहे हैं, उनके साथ समय भी बिता रहे हैं, परंतु वो उसके लिए तैयार नहीं है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। तो हमें उस समय थोड़ा पीछे होकर के कहना है कि क्या मूल्य है बाबा के ज्ञान रत्नों का और मेरी समय और ऊर्जा का। ठीक है, उनके साथ सहयोग रखना है, उनका साथी रहना है, परंतु कुछ भी हमें अपना समय या ऊर्जा निजी रूप से हमें नहीं देना है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मोह के धागे होते हैं, जहाँ पर हम ज्यादा समय और ऊर्जा हम उन पर लगाते रहते हैं। और ऐसे ही धन के साथ है, तो ये भी मोह का कहीं ना कहीं बीच में प्रश्न आता है। तो स्थूल रीति से आप देखते हैं कि कैसे एक माँ अपने बच्चे को पैसा देती रहती है और समझती है कि वो बच्चा कुछ शराब में या सिगरेट में उस पैसे को गवाता है, परंतु वो रोक नहीं सकती है खुद को। और भले उसको पता है कि अगर वो रोक देगी तो बच्चा चोरी करेगा, तो वो देती रहती है। और एक ऐसा टाइम आता है, ऐसी घड़ी आती है, जब वो देखती है कि ये बहुत घातक हो रहा है उसके लिए भी और उसके बच्चे के लिए भी। और उसको फिर एक फैसला लेना होता है कि देना है उस व्यक्ति को वो समझ की और पैसा है नहीं, और वो व्यक्ति को अब कोई ना कोई प्रोफेशनल सहयोग लेना चाहिए, राय लेनी चाहिए। और दो तीन मिसाल इस रूप से हैं, माओ की माताओं की बहुत रग जुड़ी होती है, मोह होता है अपने बच्चों के लिए। वो हिंसा भी सहन करती हैं, लेकिन वो सहती रहती हैं और कुछ बोलती नहीं, क्योंकि लगता है कि सामने वाले व्यक्ति के लिए कोई ना कोई विपदा ना आ जाए, क्योंकि मोह बहुत जोर पकड़ा होता है। अपना समय, ऊर्जा, सब कुछ, पैसा, सब कुछ गवाते हैं। बहुत सुंदर, धन्यवाद जयंती दीदी। आज की जो वरदान था बहुत गहरा था और मुझे लगा वो बहुत साधारण रूप से था। बीज रूप स्थिति में जाना, आवाज से परे जाना, साइलेंस में जाना, परंतु बाबा ने कहा वही करके हम कर्मातीत बनेंगे, बाप समान बनेंगे। तो आप इस पर थोड़ा विस्तार से थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे कि क्या वो जवाब है सभी स्थिति को पाने का? हाँ, ये है सच में, क्योंकि क्या हम योग की शक्ति को, बल को इस्तेमाल करें उस सब से पार जाने के लिए जो भी हमारे रास्ते में आ रहा है, और अपने कर्मों के हिसाब किताब को चुकाने के लिए। और मैं यूज करूँ योग बल, और बहुत जल्दी हम उस स्थिति में चले जा सकते हैं जिसमें हम बाबा से जुड़े हैं। और उस स्थिति में जब हमारा वो संबंध है बाबा से,
तब हम समझ सकते हैं कि हमारे अगले कदम क्या होंगे, क्या हम वो कर पाते हैं, ताकि हमारे कर्म हिसाब किताब चुकता हो जाए, सारे एक ही दम नहीं परंतु कदम कदम करके, ताकि और वो अनुभव कर पाना उस बीज रूप स्थिति को, और बाबा से वो संबंध जुटा रहे, ताकि बाबा की वो शक्तियां मुझ में आती रहें। कई बार देखा है, बाबा ने कहा आपके पास सारा ज्ञान है तो अभी कमी क्या है, वो है शक्तियों की। तो वो बीज रूप स्थिति और वो संबंध, बाबा से वो शक्तियां लेना जो मुझे चाहिए, ताकि सब कुछ मैं वो बाहर के रूप से जो मेरे को करना है वो मैं कर सकूं। धन्यवाद। हम चैट बॉक्स में देखते हैं, किसी ने कहा है, जयंती बेन का क्या मतलब है कहने से कि आधी पवित्रता चली जाती है द्वापर युग तक, तो आप इसको थोड़ा स्पष्ट करेंगे। अगर मैं सत्व प्रधान हूँ तो सत्व प्रधान माना भरपूर, संपूर्ण, सबसे ऊंचा स्तर है ये पवित्रता का, श्रेष्ठता। तो अगर हमारे अंदर 16 कला संपूर्ण है, हम धीरे धीरे थोड़ा खो देते हैं। त्रेता युग जब शुरू होता है सतो हो जाते हैं, और जब आधे कल्प तक आते आते हम रजो प्रधान हो जाते हैं। वो बीच की स्थिति, जब दूसरी चीजों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो वो शक्ति जो हम जोड़ते हैं, इकट्ठी करते हैं भरपूर में, वो पवित्रता, वो लाइट, वो जो स्थिति होती है पवित्रता की, वो 50% खत्म हो जाती है। 16 कला संपूर्ण से 8 तक रह जाती है, तो सब कुछ आधा आधा रह जाता है, ताकि जो और चीजें हैं वो हमारे ऊपर हावी होने लगती हैं हमारे, और देहभान आ जाता है। तो बाहर का जो स्थूल रूप है वो हमारे ऊपर हावी होने लगता है, और फिर हम कलयुग तक पहुंच जाते हैं, वो तो और कम होता जाता है फिर। और अगर अहंकार आता है तो हम भेद नहीं जान सकते हैं और सही निर्णय नहीं ले सकते, और हमारा कर्म और नीचे की ओर जाता जाता है। किसी ने पूछा है, क्या हमारे स्वप्न बदलते हैं जैसे जैसे हमारा योग आगे बढ़ता है, या फिर हमारे अंदर फिर भी संकल्प चलते रहते हैं भले हम कितने बड़े योगी बन जाएं? स्वप्न बदल जाते हैं जरूर से। और मैं दादी के स्वप्न आपको बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो अपने याद नहीं रहते हैं, हो सकता है वो बदल जाएंगे समय के अनुसार। परंतु दादी के स्वप्न जो आते थे, सपने आते थे, वो होते थे प्रेरणा, सेवा के क्षेत्र में प्रेरणा के, ये करना वो करना। कभी कभी सेवा के बहुत बड़े प्लान होते थे, परंतु जैसे जैसे आगे बढ़ी तो वो इस समय तक आ गई कि उनके स्वप्न द्वारा बाप वो सेवा करने लगी। वो बाद में कहती थी कि मुझे पता है बाबा मुझे कहीं लेकर के गए थे, मुझे नहीं पता कहाँ, तो सेवा के लिए कहीं ना कहीं ले गए। तो आप जोड़ सकते हैं उस बात से, जो व्यक्ति कहते थे कि बाबा आई थी मेरे स्वप्न में, दादी आई थी, और वो मेरी दादी सपनों में आकर के मुझे बहुत हल्का किया उस बात से, और मेरा सारा जो समस्या थी वो समाधान हो गई। तो दादी भी अपने स्वप्न से भी सेवा करती थी, न सिर्फ सेवा के स्वप्न परंतु स्वप्न से सेवा। जी। दूसरा प्रश्न आया है, अगर हम जिम्मेवार हैं एक विचार की सफलता के लिए, और मेरा टीम और बाकियों का कोई और विचार है जो मुझे पता है वो सफल नहीं होगा, और वो मेरे कार्य पर प्रभाव डालेगा, तो फिर भी हमें क्या उस विचार को लेकर के चलना चाहिए? तो अगर हम लौकिक जगत में देखें अपने विचारों को तो बहुत अलग है।
बजाय कि जो यहाँ के विचार हैं सेवा के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए। तो क्योंकि यहाँ पर पवित्र संकल्प होते हैं और सभी सहयोगी होते हैं और वो काम करता है, परंतु लौकिक जॉब के हिसाब से हमें देखना होगा कि हमें अपने आप को, अपने टीम को हमें समझाना है कि इस विचार का क्या लाभ होंगे। ऐसे नहीं कि मेरा विचार सफलता को लेकर के आएगा, परंतु एक पूरा उसके पीछे कि जब सभी सहयोगी होंगे, अगर हम देखें कि हमारा विचार ठीक है, लौकिक रीति से अगर हम ये कहेंगे तो कोई भी नहीं उसको स्वीकार करेगा, परंतु अगर हम उसके पीछे प्रमाण दे करके आए कि वो क्यों सफल होगा और सभी का सहयोग लेकर के चले, तो मैं एक सहयोग और आपस में सहमति से कैसे साथ में चल पाना, और जहाँ सभी थोड़ा थोड़ा उंगली दे करके पर्वत को उठा लेते हैं, तो अगर 3 या 4 हम आपस में विचार देते हैं एक दूसरे को और हम देते हैं, और जो निकलता है वो ना सिर्फ हमारी ऊर्जा आपस में जो जुड़ी हुई है, परंतु वो उससे भी ऊंचा है हम सबके ऊर्जा से। तो आपस में सहमति से आगे, समूह में आगे बढ़ पाना, ये नहीं कि मेरा विचार या किसी और का विचार, परंतु साथ में काम करना और समझना कि कहाँ हम जा रहे हैं और हमें क्या करना है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मेरा विचार ठीक है, आपका विचार नहीं, परंतु उस विचार का क्या मायना था उस सफलता पाने के लिए, और क्या हम वो चीजों को ला सकते हैं उस प्लान में, और अ, हम साथ में काम कर सकें ना। वो बहुत अलग हो जाता है, सिर्फ जो व्यक्ति लोग कह सकें, हाँ कह सकें, परंतु उनको साथ में लेकर के चलना बहुत ही नम्रता से, एक बहुत ही अलग वातावरण में जहाँ सम्मान है एक दूसरे के प्रति और हर एक बोल सकता है, विचारों को प्रकट कर सकता है। जी, ये विचार के बारे बात नहीं है, परंतु संबंध को बना करके चलने की बात है। तो ये प्रश्न पहले भी आया है, तो दूसरे रूप से, जब बाबा ने कहा कि हम उसको याद करें बाबा को तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, तो क्या वो हमें शक्ति देते हैं ये विनाश करने का, या फिर वो योग के समय अपने आप विकर्म विनाश होते हैं? तो ऐसा नहीं कि हमने कोई गलती की और हमने उसको समझा और हम जो कर रहे हैं कि बाबा को कह रहे हैं कि बाबा गलती हो गई, सॉरी, और हम इसको समझ रहे हैं और हम परिवर्तन करना चाहते हैं। ये 2 अलग बातें हैं कि बाबा मुझे कैसे दे रहा है ताकि हम परिवर्तन कर सकें, ताकि वो गलती ताकि हमसे दोबारा ना हो, और ये परिवर्तन होता है ताकि वो जो प्रभाव पड़ा है गलती का, वो असर न डाल सके हमारे संस्कारों के रूप से, और उसका असर दूसरों पर जो आता है हमारे आसपास, चाहे वो कोई भी है, जिन पर प्रभाव पड़ सकता है हमारी गलती का, तो वो योग बल है, वो योग अग्नि है, परमात्म प्यार है जो उस चीज को से पार करता है। किसी ने कहा है, आपका क्या विचार है चंदे बहन, जब सेंटर निवासी अ, कोई पेट रखते हैं, तो कोई पशु को अपने पास रखते हैं, तो कई बार वो उनके भोजन पर जो धन जाता है, आपका क्या विचार है इसके बारे में? ये बहुत पुराना ख्याल है, पुराना ख्याल रूप से
मैं तो बिल्कुल पेट रखने के because अ, not only हक में नहीं हूँ, ना is सिर्फ it उनका भोजन पर, सफाई wellness पर। and are you आप considering अपने कुत्ते को adopting or washing? सारा टाइम Um, नहलाएंगे so तो it's बहुत just बहुत to मुश्किल हो जाता है। हर think चीजें उस all the details पशु के बारे में, उस जानवर के बारे में समझ पाना the cleanliness और of बाबा के घर से वो इस्तेमाल करना, so there's just no तो possibility सेंटर पर रखना। सॉरी, so मुझे पता है ये बहुत ही पुराने ख्याल थे, it's very old fashioned परंतु मैं तो उस बात से सहमत नहीं हूँ। परंतु वो एक अच्छी कंपनी होते हैं जयंती बहन। I think there's मुझे something लगता है कि very बहुत कुछ interesting in terms कहीं ना कहीं of पीछे रह us जाता है कि saying जब आत्मा कहती है कि हमारे पास सही कंपनी नहीं है say और we हम make others become दूसरों को अपनी तरह बनाना चाहते हैं stay ताकि वो सेंटर पर रह सकें, your ताकि हम परिवार बना सकें जो आपस में चल सके, and एडजस्ट करके चल सके। with each other so तो many are scared to बहुत सारे लोग sometimes डरते हैं, घबराते हैं because कि दूसरा व्यक्ति आके आएगा सेंटर पर तो कैसा होगा, संस्कारों का टक्कर ना हो। if तो अगर हम यहाँ पर हैं तो हम एडजस्ट कर सकें कि कोई भी आए सेंटर पर, to the center with me वो is also हम आपस में एडजस्ट होकर के चलेंगे। if I'm एडजस्ट होकर के my ways अगर हम can't adjust अ, then they'll also पहले से ही ये धारण करते हैं कि मुश्किल होगा एडजस्ट करना, तो सामने वाला भी एडजस्ट करना मुश्किल होगा। today's तो Murli कल की भी मुरली में बाबा ने ये एडजस्ट की शक्ति पर ध्यान दिलाया। Okay. So I still hope we have some तो friends मैं here उम्मीद for those रखती who हूँ are कि not कुछ pet हमारे owners. अभी भी मित्र हैं if you're an जो हमारे individual पेट हैं। living in your अगर own आप home अकेले रहते हैं अपने घर में तो ये आपका फैसला है, परंतु सेंटर पर रहते हैं living in a तो center मुझे नहीं लगता कि वो it's an आपको option रखना I चाहिए। really don't बहुत अच्छा, तो हम अभी यहीं पे समाप्त करते हैं। जयंती बहन We'll have अगले Sister सप्ताह Jayanti भी with us हमारे again साथ next होंगी week, और and by then we'll have some more कुछ ना news. कुछ समाचार भी We मिलेंगे, have received news that they will start उद्घाटन implementing, but से I will संबंधित share ताज़ा fresh news. समाचार। So और अभी जयंती let's बहन have से Drishti दृष्टि close us लेंगे। out. बहुत बहुत Thank धन्यवाद you, सभी का। everyone. ओम Om शांति। Shanti. धन्यवाद अरुणा बहन और thanks सभी Murli को। and thank you to everyone Why have you come to earth? Do you remember? Why have you taken birth? Why have you come to love, to serve and remember? To love, to serve